Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my SST class. Hope you all are fine at home. First of all, we will start our plays together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times. There is to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Let's start with our booklet, the Cambridge Connection Social Studies of 4th Standard. Open the chapter number 6, 4 Domains of the Earth. Open the page number 32. Today we will start with the remaining chapter. We'll start from hydrosphere. What is hydrosphere? Hydro किसको बोलते हैं हम? Water को. Hydrosphere is the sphere of water. It covers nearly 71% of the Earth's surface. हाइड्रोस्फीयर किसकी स्फीयर होती है? पानी की होती है, जो क्या करती है 71% उसने अर्थ को कवर किया हुआ है. सो द अर्थ इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट. इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट. और पानी किसके लिए ज़रूरी है? ज़िंदगी को अर्थ पे जीने के लिए. Hydrosphere includes all water bodies on earth like ocean, rivers and lakes. It also includes all water bodies on earth like oceans, river and lakes. It also includes aquifers. Aquifers क्या होता है? The place where we contain earth contains the water. हमारी अर्थ के अंदर एक प्लेस होती है जहाँ पे पानी कंटेन होता है, उसको हम एक्वाफोर्स बोलते हैं. क्लाउड्स इन द एयर एंड स्नो ऑफ ग्लेशियर्स ऑन माउंटेन पीक्स. वाटर ऑन अर्थ इज़ क्लासिफाइड एज सी वाटर एंड फ्रेश वाटर. जो धरती पे हमारी अर्थ पे पानी होता है उसको क्या बोला जाता है? सी वाटर और फ्रेश वाटर के नाम से जाना जाता है. सी वाटर इज़ सॉल्टी एंड फाउंड इन ओशंस. फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड ponds. Water in all its forms is constantly moving. This happens due to evaporation and condensation. Water from the water bodies evaporates during the day as water vapor and enters the atmosphere. The water vapor there changes into water droplets on cooling. It then comes down on earth in the form of rain. This continued movement of water known as the water cycle. The currents here affect the climate of islands and coastal areas. This sphere is home to many planets and animals. They provide us with food and other important things. तो क्या होता है? जो हाइड्रोस्फीयर है वो एक वाटर है, जिस पानी को बोलते हैं, जिसने 71% ऑफ हमारी जो अर्थ का है कवर कर रखा है. और यहाँ पे क्या है? जो हमें फ्रेश वाटर है वो कहाँ से मिलता है? रिवर्स में से, लेक्स में से और पॉन्ड्स में से. ओके, नाउ कम टू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ द डोमेन ऑफ एयर. हमारे वातावरण, जिसको हम वातावरण बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट इज़ बेसिकली अ कलरलेस एंड अडोरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ. ये क्या है? इसमें ना कोई कलर है और ना ही इसमें कोई स्मेल है. अडोर होती है स्मेल, तो वे क्या है? कलरलेस और अडोरलेस मिक्सचर है गैसेज का, जो हमारी धरती पे रहती हैं लेकिन हमें ना तो महसूस होती हैं और ना ही हमें दिखाई देती हैं. It includes nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors and various other gases in different proportions. और ये क्या इंक्लूड करता है?
नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होता है एंड वेरियस मतलब और भी बहुत तरह की इसमें गैसेस होती हैं. एटमॉस्फेयर involves the earth like a blanket and acts as a gigantic filter keeping out harmful rays of the sun. एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या है? उसका एक, जैसे हम बोलते हैं कि गैसेस का एक कवर होता है जो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन आसमान में होती है, जो हमें यूवी सन रेज से, जो हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए हार्मफुल होती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है. Atmosphere supports life on earth. We breathe oxygen in the atmosphere. Atmosphere करता है हमारी लाइफ को हेल्प करता है यहाँ पे जिंदा रहने के लिए, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं जिंदा रहने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इनेबल्स प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो प्लांट्स की हेल्प नहीं करती है फूड बनाने के लिए, लेकिन कौन सी गैस करती है, नाइट्रोजन करती है. कार्बन डाइऑक्साइड enables planets to prepare their food. Nitrogen, which comprises nearly 78% of the atmosphere, makes our soil fertile. Water vapor helps in formation of rainfall and controlling the temperature of an area. वाटर वेपर क्या करता है, रेनफॉल में हेल्प करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए. एयर इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड वी शुड नॉट पॉल्यूट इट. और एयर क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्ल्ड में रहने के लिए, और हमें इसको बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक लाइज बिलोंग द एटमॉस्फेयर? ओके, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज़ द स्फीयर वेयर लाइफ इज एग्जिस्टेज ऑन अर्थ. Life exists everywhere on land, in air and water. Biosphere comprises the world of land and air and water. Biosphere comprises the world of all the planets and animals, including ourselves. It also comprises the natural surroundings in which all of us interact and influence each other. Thus, biosphere includes both the living and non-living components. Here, organisms exist within the specific environment called as the habitat. All living organisms functioning together with their environment as a unit make as ecosystem. बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर है हमारा वायुमंडल, जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एवरीथिंग, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, और इसको हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं. एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनी ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स डिस्टर्ब्स द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर. फॉर एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट्स. जैसे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम जंगलों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, तो वो क्या है, एनिमल्स की लिविंग को, उनके घर स्पॉइल कर देता है और उनके लिए ये क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. इट रिमूव्स द फूड एंड फॉडर सप्लाई ऑफ द पीपल डिपेंडेड ऑन दोज ट्रीज. और ये ऑल्सो क्या करता है, फूड सप्लाई को भी बंद कर देता है जो हमारे ह्यूमंस के लिए आती है उन ट्री से, जो ट्री काट दिए जाते हैं. लैक ऑफ ट्रीज गिव्स राइज टू रैम्पट फ्लड्स एंड मड फ्लोज. जितने ज़्यादा ट्रीज़ कम होंगे उतना ज़्यादा ही फ्लड्स एंड मड फ्लोज का जो है फ्लो जो है वो राइज होता जाएगा. जितने ट्रीज़ होंगे उतना ही हमारे यहाँ पे क्या है, फ्लड्स कम आएंगे. देयरफॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम ऑल हार्म. इसीलिए हमें हमेशा बायोस्फीयर को हर एक हार्म से प्रोटेक्ट करना चाहिए. दिस विल सेव अस एंड आर अर्थ टू. और ये हमको भी सेव करेगा और हमारी अर्थ को भी. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.